Hi students, my name is Anupama. Today I am here with the chapter The Address. I hope all my videos have been quite beneficial for all of you. If you have liked my videos, please subscribe my channel. Let's start with the chapter The Address. As you can see, this one is written by Marga Minso. She is the narrator of this story, which is an account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds the belongings, these things evoke memories of her early life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on in life. At first, she was eager to see them, but now they have lost their value since they got separated from her mother, who was no more in this world. Let's start the chapter, The Address. "Do you still know me?" I asked. The women looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. Chink means a very little one. When the narrator asked, "क्या तुम मुझे जानती हो?" women started looking at her searchingly. लेडी जो है उसे ध्यान से देखने लगती है. दरवाज़ा बहुत कम खुला है और जब नरेटर पास आती है सीढ़ियाँ चढ़कर, What is the reply? No, I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानती. I am Mrs. S. daughter. मैं Mrs. S. की बेटी हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. And the lady who was standing there, उसने हाथ को दरवाजे पर रखा है ताकि दरवाज़ा और ना खुले. Her face gave absolutely no sign of recognition, और उसके चेहरे कहीं भी ये नहीं दिखाता कि वो उस लड़की को पहचानती है. She kept staring at me in silence, लेकिन वो उसे लगातार देखती रहती है. Perhaps I was mistaken, क्योंकि वो लेडी उसे लगातार देख रही है तो गर्ल को लगता है, नरेटर को लगता है कि शायद वो गलत घर में आ गई है. I thought perhaps it isn't her. मैंने सोचा कि जिस लेडी से मैं मिलने आई थी ये शायद वो नहीं थी. Why? Because she had seen her only once. क्योंकि उसने उसे सिर्फ एक बार देखा था. Fleetingly means बहुत थोड़े से समय के लिए, and that was years ago. और वो भी सालों पहले. It was most probable that I had rung the wrong bell, और हो सकता है कि मैंने गलत घर की बेल बजाई है. The women let go of the door and stepped on the side to the side, और लेडी जो है दरवाजे को छोड़कर एक साइड पर हो जाती है और लड़की देखती है कि उस लेडी ने उसकी मदर का ही निट किया हुआ बनाया हुआ कार्डिगन स्वेटर पहना है, और उस स्वेटर पर जो वुडन बटन हैं वो येलोइश हो गए हैं वॉशिंग की वजह से. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. मैंने अभी आपको बताया कि इससे पहले वो लेडी शो नहीं करती कि वो उसे पहचानती है, और बाद में जब गर्ल देखती है कि उसने उसकी मदर का ही स्वेटर पहना है, देन शी रियलाइज्ड कि वो पकड़ी गई है. She saw that I was looking at the cardigan. वो देखती है कि वो उसके कार्डिगन को देख रही है. And she hid herself, और वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है. लेकिन इस बात से उसे कंफर्म हो जाता है कि ये घर सही है जिसका दरवाज़ा उसने खटखटाया है. Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? Said the women. I thought that no one had come back. Only me. और जब नरेटर ने उस लेडी से ये पूछा कि क्या तुम वेल यू न्यू माई मदर, की तुम मेरी माँ को जानती थी, तो उस लेडी ने आगे से क्या कहा कि क्या तुम वापस आ गई. I thought that no one had come back. मैंने तो सोचा था कोई भी नहीं आएगा, और नरेटर का जवाब था और कोई नहीं आया, सिर्फ मैं आई हूँ.
उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, पीछे एक पैसेज है, एक बहुत मस्ती सी स्मेल जो है वो वहाँ से आती है। एंड लेडी रिप्लाइड कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, कि मेरे लिए अब कन्वीनियंट नहीं है, यानी मेरे पास प्रॉपर समय नहीं है कि मैं आपसे मिल सकूं। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं आपसे नहीं मिल सकती, आप फिर किसी और दिन आएंगे। मस्टी मीन्स स्मेलिंग डैम्प एंड अनप्लेजेंट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द फ्रेश एयर। वो घर जो बंद बंद रहते हैं उसमें से एक मस्टी सी स्मेल आती है। I regret I cannot do anything for you. Come some other time, she said. And she said कि I have come here specially on the train, कि मैं ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, but she denied। और उसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देती है और इस तरीके से दरवाजे को बंद करती है जैसे कि वो चाहती है कि जो लोग अंदर हैं वो उसकी इस आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो। थोड़ी देर के लिए जो नरेटर है वो वहाँ पर सीढ़ी पर खड़ी रहती है और जो कर्टन है सामने की विंडो, एक लार्ज विंडो है विद ग्लास ऑन 3 साइड्स, दैट इज़ कॉल्ड बे विंडो। तो उस विंडो का जो कर्टेन है वो वहाँ से मूव करता हुआ दिखाई देता है, तो उसे लगता है कि शायद उसे कोई वहाँ से देख रहा था। देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और उसको लगता है कि कोई मुझसे अभी पूछेगा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। वो नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, और फिर से नेम प्लेट की तरफ देखती है। उसके ऊपर डार्लिंग लिखा है ब्लैक लेटर्स के साथ, ऑन वाइट इनेमल है, और ऑन द जैम्ब अ बिट हायर नंबर लिखा हुआ है, नंबर 46। जैम्ब होता है अ वर्टिकल पोस्ट एट द साइड ऑफ अ डोर या विंडो समझ लीजिए। सो उसके ऊपर नंबर है, इट मीन्स कि वो कौन से घर में आई है, नंबर 46 है और डार्लिंग का वो घर है। अब वो वापस स्टेशन की तरफ जा रही है नरेटर, और वो अपनी मदर के बारे में सोच रही है, उस एड्रेस के बारे में सोच रही है जो उसने सालों पहले दिया था, और ये फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर था, और वो कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी और वो घर में ही थी। दैट उसको अचानक जो है कुछ स्ट्रक हुआ, यानी कि उसको कुछ रियलाइज हुआ दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, कि कमरों में कुछ बदला बदला सा है, उसे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग दिखाई देती हैं। और मम्मा भी जो है वो हैरान हो जाती है कि जो नरेटर है उसने इतनी जल्दी इस चीज़ को नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट, और फिर मम्मा उसे बताती है मिसेस डार्लिंग के बारे में, और मैंने इस लेडी के बारे में कभी नहीं सुना था, क्योंकि वो लेडी जो थी वो एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी, मम्मा की जान पहचान की, पुरानी जान पहचान की लेडी थी, जिसे वो सालों से नहीं मिली थी, और अचानक जो है वो टर्न अप, अचानक वो मम्मा को मिली और उनका कांटेक्ट फिर से स्टार्ट हो गया सिंस देन। और फिर उस दिन से लगातार वो उनके घर आ रही थी। Every time she leaves here she takes something home with her, said my mother। ममा नरेटर को बताती है कि जब भी वो घर से जाती है तो वो कुछ ना कुछ सामान अपने साथ लेकर जाती है। और एक बार तो उनके घर में जितना भी सिल्वरवेयर था, टेबल के ऊपर जो सिल्वर के यूटेंसिल्स रखे जाते हैं वो सब एक बार में ले गई, और फिर एंटीक प्लेट भी वो घर से वहाँ से ले गई। और उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी जब वो लार्ज, बहुत बड़े साइज के जो वेसेस थे, दैट इज फ्लावर पॉट थे, और उसे लगा कि मम्मा को लगता है कि शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, कि इतना हैवी है सामान कि हो सकता है कि उसकी बैग में पेन हो जाए। तो आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हर। तो मम्मा कहती है मैंने तो कभी हिम्मत ही नहीं की मिसेस डॉर्लिंग को ये कहने की, ये मिसेस डॉर्लिंग ने ही मुझे सजेस्ट किया, इवन इंसिस्ट किया, जैसा कि आपको पहले बताया कि ये वॉर टाइम है, तो वॉर टाइम की वजह से जो डॉर्लिंग है वो मिसेस एस को ये
एश्योरेंस देती है कि वो उसके घर के सामान को सेफ कस्टडी में रखेगी और जब टाइम नॉर्मल हो जाएगा तो वो सारा सामान उन्हें वापस कर देगी। तो मम्मा अब अपनी बेटी को बता रही है कि मैं उसे नहीं बोल पाई, बल्कि उसने मुझे सजेस्ट ही नहीं बल्कि इंसिस्ट किया कि मैं इन सब जो सुंदर चीजें हैं इन्हें बचा कर रखूंगी। इफ वी हैव टू लीव हियर और वी शैल लूज एवरीथिंग, क्योंकि अगर हमें अचानक यहाँ से जाना पड़ा तो ये सब चीजें हमें खोनी पड़ेंगी। तो जो नरेटर है वो मम्मा को बोलती है कि तुम इस बात से एग्री कर गई कि वो हमारा सारा सामान अपने साथ रख ले। तो मदर को इस बात का बुरा लगता है और उसे लगता है कि ये इंसल्ट होगा अगर वो इस तरीके से वो उसके बारे में बात करती है। क्यों? क्योंकि मम्मा को लगता है कि मिसेस डॉर्लिंग अपने लेवल पर बहुत रिस्क ले रही है ये सामान को अपने घर ले जाकर। Okay, we can see कि developed a soft corner. Mother has developed a soft corner for her friend. तो उसके बाद जो है मम्मा को ये बातें अच्छी नहीं लगी और उस मम्मा ने उससे बात करना बंद कर दिया बेटी के साथ, नरेटर के साथ। और ये सब बातें वो बातें थी जो नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर से स्टेशन की तरफ आते हुए याद कर रही थी। अब वो स्टेशन तक पहुंच गई है। उसने रास्ते में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उन्हीं शहर की गलियों में घूम रही थी जिस शहर में वो रहती थी, लेकिन वो अपने आसपास ज्यादा नहीं देखना चाहती थी क्योंकि वो अपसेट नहीं होना चाहती थी उन गलियों से, उन घरों से, जिन घरों में, जिन गलियों में उसकी बहुत मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। तो अब वो ट्रेन में जब बैठी है तो उसे फिर से मिसेस डॉर्लिंग की याद आती है कि कैसे पहली बार वो उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग थी आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मम्मा ने उसके बारे में बताया। तो उस दिन नरेटर थोड़ा लेट उठी थी और वो नीचे आई तो उसकी मम्मा किसी को सी ऑफ कर रही थी। शी वॉज अ लेडी विद अ ब्रॉड बैक। तो जो मदर है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया नरेटर को कि ये मेरी बेटी हैं। तो उस लेडी ने भी सर हिलाकर इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उसके बाद वो सूटकेस जब उठाने लगी तो शी कुड सी कि उसने ब्राउन कोट पहना है, हैट पहना है। तो क्योंकि वो बहुत हैवी जो था बैग था, तो नरेटर ने ये पूछा कि डज शी लिव फार अवे, कि क्या ये बहुत दूर रहती हैं, बिकॉज शी वॉज कैरिंग सच अ हैवी केस। देन मम्मा टोल्ड इन मार्कनी स्ट्रीट नंबर 46, remember students that this was the only time that the mother had told her daughter about the address that she kept remembered, कि एक ही बार बताया था मम्मा ने और नरेटर को वो दिमाग में याद रहा। इसीलिए जब वो लेडी उसे रिकॉग्नाइज करने से मना करती है तो उसे ये लगता है कि शायद वो गलत घर में आ गई। ओके, लेकिन उसे वो एड्रेस याद था और बहुत लंबे समय तक उसने इंतज़ार किया कि वो वापस वहाँ जाए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, जब उनका फ्रीडम हो गया तो शुरू में वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि उस सारे स्टोर्ड स्टफ, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कपबर्ड में रखी होंगी, स्टोर में रखी होंगी, कि मैं वहाँ जाऊँ, उन चीज़ों को देखूँ, क्योंकि उसे डर लग रहा था। किस बात से डर लग रहा था? क्योंकि वो उससे रिलेटेड थी जो इस दुनिया में ही नहीं था। इट मीन्स हर मदर वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और जो सारी चीज़ें जो हैं कबर्ड के अंदर हैं, बॉक्सेस के अंदर हैं, क्यों वो बॉक्सेस के अंदर है, कबर्ड के अंदर है? क्योंकि उन चीजों के अंदर लाइफ नहीं है, वो थिंग्स हैं। दैट इज वाई दे हैड लिव्ड फॉर ईयर्स इन द कबर्ड्स और इन द बॉक्सेस। लेकिन धीरे धीरे हर चीज नॉर्मल होने लगी और दे स्टार्टेड इंजॉइंग इवन देयर फूड। इवन जब वो सोते थे तो अब उन्हें डर लगना बंद हो गया था और कमरे में से अब वो बाहर देख पाते थे। और वन डे एंड आई नोटिस, नरेटर जो है वो क्यूरियस होती है रिगार्डिंग ऑल द बिलोंगिंग्स, वो सब चीज़ों को देखने के लिए जो ज़रूर उस एड्रेस पर होंगी, और वो उन सब चीज़ों को देखना चाहती थी।
टच करना चाहती थी और याद करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें थी जो उसकी मदर से बिलोंग करती थी। और पहली विजिट जो कि बेकार गई थी, मिसेस डॉर्लिंग ने उसे पहचानने से मना कर दिया था और उसे ये कहा था कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, कम सम अदर टाइम। तो अब वो दूसरी बार फिर से उस घर का दरवाजे पर आती है। अब मिसेस डॉर्लिंग नहीं है, एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल है जो दरवाजे को ओपन करती है। और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी माँ क्या घर पर है? एंड शी सेड कि माई मदर इज डूइंग एन एरेंड, यानी कि किसी छोटे मोटे काम के लिए गई है। एंड नरेटर सेज कि ओके आई विल वेट फॉर हर, कि मैं उसका इंतज़ार करूँगी। और वो लड़की के पीछे पीछे उस घर के अंदर एंटर कर जाती है। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मिरर से आगे जो है एक कैंडल होल्डर रखा है। और narrator said कि we never used it because it was much more cumbersome. Cumbersome means heavy than a single candlestick. कि हमने इस कैंडल होल्डर को कभी यूज नहीं किया था क्योंकि ये बहुत भारी था। इट मीन्स मिसेस डॉर्लिंग के घर में एंटर करते ही उसे कैंडल होल्डर दिखाई दिया जो उनसे बिलोंग करता था। और उस लड़की ने उससे बैठने के लिए कहा और रूम का दरवाज़ा खोल दिया और वो उस रूम में जाकर बैठ गई। अब जब उस कमरे में वो एंटर हुई, शी वॉज हॉरिफाइड, क्योंकि आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिडंट नो, कि मैं एक ऐसे कमरे में थी, मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। नहीं क्यों जानती थी? क्योंकि वो स्ट्रेंज सराउंडिंग्स थी। आई न्यू बिकॉज ऑफ ऑल द बिलोंगिंग्स दैट वर डिस्प्लेड इन द रूम। आई फाइंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट थिंग। मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिन्हें मैं देखना चाहती थी, लेकिन वो बड़े अजीब से, हमारे घर की चीज़ अगर किसी दूसरे के घर में पड़ी होगी तो वो हम शायद उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो उनका प्रेजेंटेशन या उनका एटमॉस्फेयर जो घर का है या उनका जो तरीका है, वी आर नॉट गोइंग टू अप्रूव इट। तो उससे जो है वो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर के अंदर उन सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी टेस्टलेस तरीके से उसे अरेंज्ड लगी। सो बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, मगी स्मेल दैट हंग देयर, क्योंकि वहाँ बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। मुझे नहीं मालूम कि वाई शी सेड, कि मुझे नहीं मालूम कि मैं उन सब चीज़ों को क्यों अप्रूव नहीं कर पा रही थी। द गर्ल मूव द चेयर, आई सेट डाउन, बैठ जाती है। अब उसके सामने एक टेबल है, उस पे वूलन टेबल क्लॉथ है। शी स्टार्टेड रबिंग इट, और उसकी जो फिंगर्स हैं ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग। इट डजंट मीन कि उसकी उंगलियां गर्म हो गई, इसकी मतलब ये है कि वो सब यादें जो हैं वापस उसके पास आ गई। और वो उस पैटर्न में, उस डिजाइन के अंदर जो वूलन टेबल क्लॉथ था, कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे याद था कि कहीं किनारे पे एक बर्न मार्क था जिसे उन्होंने कभी रिपेयर नहीं किया था। और जो गर्ल थी, शी सेड कि मेरी मम्मा जल्दी ही आ जाएगी, मैं तब तक आपके लिए चाय बनाती हूँ, क्या आप चाय पियेंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, और जो गर्ल है वो टी टेबल पर कप्स रख रही है। और बिल्कुल लड़की अपनी मदर जैसी है, हैविंग अ ब्रॉड बैक। एंड शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उसने चाय डाली एक वाइट पॉट में से। उस पॉट का जो लिड है, ढक्कन है, उसके ऊपर गोल बॉर्डर है। अब नरेटर को ये भी याद आता है कि ये टी जो कप्स हैं और वाइट पॉट है, ये भी उनसे बिलोंग करता है। और उसके बाद वो बॉक्स लाती है, उसमें से कुछ स्पून्स निकालती है। दैट इज अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। वाई शी हर्ड माई ओन वॉइस? क्योंकि ये बड़ी अजीब बात थी, वो अपनी ही चीज को अप्रिशिएट कर रही थी कि दैट इज अ नाइस box. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. My mother say it is antique. We have got lots more. और लड़की हंसते हुए कहती है कि ये हमारे घर में एंटीक हैं और हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीक पीसेज हैं।
तो वो पॉइंट आउट करती है कि देखो यू कैन सी ऑन द वॉल एंड प्लेस्ड हेयर एंड देयर। अब नरेटर को ज़रूरत नहीं है उसे फॉलो करने की कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ रखी हैं, क्योंकि उसे उन सब चीज़ों के बारे में मालूम है कि कौन सी एंटीक पीसेस हैं। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। अब ये स्टिल लाइफ क्या है? ये टी पॉट हैं, ये कप्स हैं, ये स्टिल लाइफ हैं जो टी टेबल पर हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बिलोंग किसको करते हैं? नरेटर को। एज अ चाइल्ड, और जब नरेटर बहुत छोटी थी तो उसने हमेशा जो है एक इमेजिनेशन किया था, विश किया था एप्पल को उस प्यूटर प्लेट के अंदर खाने का। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। और वो लड़की कहती है कि इन सब जो यूटेंसिल्स हैं, इन सब को हमने एक एक बार यूज़ किया है, एंटीक पीसेस को यूज़ किया है, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और टिल देन जो है नरेटर, शी फाउंड बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो लड़की उसकी तरफ बड़ी क्वेश्चनिंगली देखती है कि ये बर्न मार्क की तरफ क्यों देख रही है। एंड yes, I said, you get so used to touching all these lovely thing in the house, you hardly look at them anymore. नरेटर सेज कि हाँ, हम लोगों को आदत हो जाती है हमारी ही घर की चीज़ों को टच करने की। आप उनकी तरफ देखते नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी आपको बिलोंग करते हैं। आप सिर्फ उनको नोटिस कब करोगे? जब वो आपकी नज़रों के सामने से हट जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। चाहे वो रिपेयर के लिए गया है या आपने किसी को उधार में दिया है, तब सडनली आप उस चीज़ की को मिस करेंगे कि वो चीज़ कहाँ गई। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on। और वो एक उसे और कुछ बताती है कि कैसे एक बार मम्मा ने उसे कहा, ये नरेटर बता रही है कि जस्ट हेल्प मी टू पॉलिश द सिल्वर। अब नरेटर मम्मा को कहती है कौन सा सिल्वर जिसे पॉलिश करना है मम्मा? तो मम्मा कहती है क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जितने भी स्पून्स, फॉक्स और नाइफ्स तुम रोज यूज करती हो वो सब सिल्वर के हैं। एंड एट दिस द गर्ल लाफ्ड। तो नरेटर कहती है तुम भी शायद नहीं जानती कि तुम्हारे घर के अंदर जितना कटलरी है वो सिल्वर का है। एंड शी गॉट सरप्राइज्ड, व्हाट वी ईट विद? क्या वो कटलरी जिससे हम खाते हैं? वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो? तो वो हेजिटेट करती है और वो ड्रॉर को खोलने के लिए जाती है कि मैं देखती हूँ ये यहाँ रखे हैं और देखती हूँ मैं सिल्वर के हैं या नहीं। शी वॉज गेटिंग सरप्राइज्ड कि नरेटर को कैसे मालूम है, एंड शी वॉन्ट टू कन्फर्म इट। आई जम्प्ड अप, लेकिन तब तक नरेटर खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, और वो कहती है कि मैं समय को भूल गई थी। आई मस्ट कैच द ट्रेन, कि मुझे ट्रेन को पकड़ना है। और तब तक लड़की का ड्रॉर तक हाथ पहुंच गया था। एंड शी सेड कि क्या मम्मा का इंतज़ार नहीं करोगी? एंड शी सेड नो, आई मस्ट गो। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन। अभी लड़की उसी कटलरी को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो नरेटर है, शी हैज़ डिसाइडेड कि नहीं, मैं अपने आप रास्ता देख लूँगी, मैं चली जाऊँगी। और उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। लेकिन वो वहाँ से बाहर आ जाती है और एट द कॉर्नर ऑफ द रोड फिर से वो उस नेम प्लेट को देखती है। मार्कनी सेड इट हैड बीन अ 46 नंबर। एड्रेस बिल्कुल सही था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। नरेटर उससे याद नहीं रखना चाहती थी, वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो सब चीज़ें, उसकी वो सब यादें जो फैमिलियर लाइफ, जो पुराने समय से बिलोंग करती थी, उनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से अलग हो चुकी थी जो इस दुनिया में अब नहीं है। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम? एंड देन शी सेड कि मैं इन सब का करूँगी भी क्या, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है और बहुत हैंडफुल ऑफ कटलरी जो है मेरे नैरो टेबल ड्रॉर में आएगी। तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैं इस एड्रेस को ही भूल जाऊं, क्योंकि सब चीज़ों से भूलने का सबसे ज़्यादा बेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है कि मैं इस एड्रेस को ही भूल जाऊं। What she wants to convey, because she wants to convey that she wants to move ahead in her life. She has lost, her lost is too big. She has lost her mother, she has lost her home, but she wants to move ahead in her life, because life is an ongoing process. Nobody can stop, each one has to move ahead.
आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी with the emotions, you can say, that make us also realize the pain and the suffering that the narrator has gone through. Let's discuss the question. Have you come back, said the women. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what it is? Yes, beta, this statement gives us some clue about the story. During the early part of the war, Mrs. Darling, who has given assurance to her mother to keep safe all the belongings, valuables of Mrs. S. But when she made this statement, have you come back? It shows the greedy nature of Mrs. Darling, that she didn't want to give all those things to the narrator. That is why she did not let the girl in. Even when she told Mrs. Darling that only she had come, the women with the broad back didn't soften a bit. She didn't get emotional that she had lost her friend. So it shows the clash of the interest is hinted in this question. The story is divided into pre-war and post-war times. आपने pre-war में भी देखा है और post-war time भी देखा है. So what hardships do you think the girl underwent during these times? During the pre-war times, the narrator lived in some other city far away from home, and she visited her mother only for a few days. So during the first half of the war, the narrator's mother was always afraid that they might have to leave the place and lose all the valuable belongings, and the narrator's mother was giving all the valuable things to the lady. And after the liberation, after, you can say, the post-war, the lady and the narrator has to suffer a lot. She has lost her mother, she has lost her house, even the value, all the things, the belongings, the possessions of her mother. She wanted to touch them, she wanted to remember all her mother possession, but she had to take the trouble of even visiting the place again. She has to witness all the law, all the you can say loss she has to suffer and during the war times. So the next question: why did the narrator of the story want to forget the address? Because I believe that is the she realized, before this, when everything started getting normal, she wanted to touch the belonging, the possessions of her mother, remembering her mother. But when she reached there, she found all the things in strange atmosphere. It really pained her, and she realized that she has to move ahead in her life. And what she find the easiest method to forget the address. So she wanted to leave the past behind and decided to move on. The address is a story of human predicament that follows war. Exactly, comment. The war creates many difficult and unpleasant situations for a human being. I need not tell what kind of difficulties one has to undergo. You can see the girl has lost her dear mother. She went to 46 Marconi Street to her mother valuable possession. But this war has caused many physical difficulties as well as emotional sufferings to her. That when she went to see her mother valuable possession, it was really a suffering. It really pained her to see how greedy and callous human beings can become. Mrs. Darling greed exemplified this, that how greedy and callous human beings can be. And she refused to, you can see that she refused to recognize the narrator. She didn't even let her, the presence of her mother position in strange atmosphere pained her. And she was really very, very, you can say, pained to see that she wanted to get